نہ خوف نہ منزل کی فکر، اپنے ہی دھن میں چلا چل ہم سفر، کبھی دراز سے سری نگر یا ہو لداخ کا سفر، ہر دم رہے آپ کے ساتھ آپ کا اپنا ریڈیو دراز 90.4۔ السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ڈیجیٹل ہینڈلز ریڈیو دراز 90.4 اور میں آپ کا اپنا آر جے سلیم۔ تو جس طرح ریڈیو دراز 90.4 کا جو ایک پہل رہتی ہے، خاص کر ایک گیسٹ انٹریکشن کا، تو ہر ہفتے کی طرح اس ہفتے میں آج ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں ڈاکٹر مسرت حمزہ لون، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں اور اردو کے پروفیسر ہیں ڈگری کالج دراز میں۔ بہت بہت ویلکم کرتے ہیں سر ریڈیو دراز 90.4 میں۔ سر، آپ ایجوکیشن سے تعلق رکھتے ہیں اور خاص کر آج ہم بات کریں ایجوکیشن کی، تو کتنا بڑا ایک رول رہتا ہے، خاص کر آپ ڈگری کالج دراز میں ہیں، آپ دراز جیسے ایریاز میں آپ اپنا سروس دے رہے ہیں، اور ایجوکیشن کا کیا ہے ایک امپورٹنٹ ایک پارٹ ہے خاص کر ایسے ایریاز میں، اور تھوڑا اپنا انٹروڈکشن تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ریڈیو دراز 94 کا سب سے تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے آج ہمیں موقع دیا کہ یہاں پر اپنے اسٹوڈیو پر بلا کر کہ ہمیں اپنے ایکسپیرینس، ہمیں یہاں پر اپنی بات پہنچانے تک، دوسروں تک پہنچانے کا ہم ان کا تہ دل سے شکریہ کرتے ہیں کہ تاکہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھا سکتے۔ سب سے پہلے میں اپنا تعارف بتاؤں، میرا نام ڈاکٹر مسرت حمزہ لون ہے، میں نے ایم فل پی ایچ ڈی اردو میں کیا ہے۔ اس وقت میں اپنے فرائض ڈگری کالج دراز میں انجام دے رہا ہوں، بحثیت اور اسسٹنٹ پروفیسر اردو کی کام دے رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ نے پوچھا ہے کہ ایجوکیشن کے بارے میں، جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایجوکیشن کے بارے میں، تو سب سے پہلے ہمارے لیے اگر ہم اس انداز سے بھی دیکھیں گے تو ہمارا دین، ہر ایک مذہب یہ کہہ رہا کہ ایجوکیشن ہر مذہب میں یہ ضروری ہے۔ جیسے کہ ہمارے اوپر کہا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمہ والمسلمہ، ہر ایک مسلمان عورت یا مسلمان مرد، جو بھی مرد، وہاں پر مسلمان ہم پرٹیکولر نہ کہے، جو بھی چاہے مسلمان ہے وہ یا عورت ہے، ان پر علم فرض ہے۔ تو اب ایجوکیشن کی بات آ رہی، علم کی بات آ رہی ہے، تو جب ہمارے پاس علم ہوگا تو ہم اپنے خالق کو پہچان سکتے ہیں، یعنی خدا کو ہم پہچان سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ جہالت عیب ہے اسلام کے آئین میں، علم حاصل کیجیے چاہے ملے وہ چین۔ اگر ہمیں کہیں بھی جانا پڑے علم کے لیے تو فرض ہے ہمارے۔ تو یہ بھی کہا جا رہا کہ اگر اس میں کسی کی موت ہو جائے تو اس کا بھی افضل درجہ ملے گا کہ اگر علم کے حاصل کرنے کے۔ جیسا کہ ہم اپنے دین کی طرف دیکھتے تو بہت سارے صحابہ جب سنتے تھے کہ فلانی کے پاس یہ حدیث ہے، فلانی کو یہ بات معلوم ہے، تو وہاں پر دوڑ کے جاتے تھے۔ تو اسی لیے علم کے لیے ہمیں ہر جگہ یہیں سے جانا چاہیے۔ اب ایجوکیشن کی بات جب آ رہی ہے تو ایجوکیشن کا ماڈیفکیشن آف بیہیویئر، سب سے پہلے جو ایجوکیشن ہے یہی ہمیں سکھاتا ہے کہ ادب، تہذیب، ہم دوسروں کے ساتھ کیسے اٹھیں بیٹھیں ملے، بات کرنے کا انداز، یہ سب ہمیں اسی سے آ رہا ہے۔ تو ایجوکیشن ہی آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں گے تو ہر جگہ پر اس وقت ایجوکیشن کا ہونا ہر فیلڈ میں ضروری ہے۔ تو دنیا میں جتنے بھی ہم چاہتے ہیں کہ جہاں بھی ہم جائیں، ایجوکیشن کی جب تک نہ ہمیں کسی کے بارے میں نالج ہو، ایجوکیشن ہو، تو ہم نہیں جا سکتے۔ اس لیے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی جو پڑھائی جو ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہم کسی انسٹیٹیوٹ میں جائیں، ہمیں تو چاہیے کہ 24 گھنٹے ہم گھر میں بھی چاہے بیٹھے تو وہاں بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، مدارس چاہے، مساجد چاہے، جہاں بھی جائے، جس ادارے میں جائے، وہاں پر ہم اپنا تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ساتھ ہی ساتھ اب یہ ہے کہ ایجوکیشن کے علاوہ کیریئر، تو سب سے پہلے ہم اس کی بات کرتے ہیں ایجوکیشن کیریئر۔ آپ نے بھی پوچھا سر کہ کیا ضرورت ہے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کے پاس اپنا اپنا گول ہونا چاہیے۔ جب تک نہ گول ہو تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جیسے کہ آپ کا اپنے حساب سے جو گول تھا، آپ نے اس کو حاصل کرنے کی کن کن مشکلات کا سہارا لینا پڑے آپ کو۔ کبھی جس وقت ہم جس ایریا میں ہم اس وقت بات کر رہے ہیں، دراز سے ہم بات کر رہے ہیں، تو یہاں پر یہ تو سیکنڈ ایریا ہے جو سب سے سرترین علاقہ مانا جاتا ہے پوری دنیا میں، لیکن پھر بھی آپ نے ایسی جدوجہد کی ہے کہ اپنے گول کو پانے کے لیے۔ یہ ایجوکیشن میں بھی ہر ایک کو پہلے گول ہونا چاہیے۔ ایجوکیشن جو بھی ہے اس کے لیے ہمیں گول ہونا چاہیے۔ آج جہاں بھی ہمیں جانا چاہیے، جو بھی ہمیں حاصل کرنا ہے اپنے مقصد کے لیے، تو اس کے لیے ہمیں ایجوکیشن ضروری ہے۔
बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे नाजरीन डॉक्टर मसरत हमजा लोन, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उर्दू के प्रोफेसर हैं डिग्री कॉलेज द्रास में, जो अभी कह रहे हैं कि खासकर एजुकेशन और कैरियर काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। सर, हमारा अगला सवाल ये है कि खासकर हम देखते हैं एजुकेशन, आपने कहा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैरियर काउंसलिंग। तो खासकर हम बात करें प्राइवेट मूड्स या जो एक प्राइवेट साइकिल होता है, या प्राइवेट सर्विसेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटी या एक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट मूड या फाइनेंशियल जिनके पास असिस्टेंस कम होता है, उन बच्चों के लिए या एक अवेयरनेस पेरेंट अवेयरनेस कैंप्स या प्रोग्राम्स क्या एक रोल प्ले करता है अगर हम एजुकेशन के साथ साथ ये चीज़ें भी साथ में लेके चले? बिल्कुल सर, आपका जो दूसरा सवाल है बहुत ही अहम है हमारे नज़र में। आपने कहा फाइनेंशियल, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते हैं, जिनके पास कुछ वसाइल नहीं होते। लेकिन दौर हाजिर में जब हम देखते हैं, हुकूमत ने ऐसी ऐसी स्कीमें निकाली है, ऐसी ऐसी स्कॉलरशिप निकाले हैं, जिनसे आज के दौर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपनी तालीम को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन उन बच्चों को उसके बारे में मालूमात नहीं होती है। जो भी आपने बात कही कि कैरियर होना, कैरियर काउंसलिंग के लिए पिछले साल से एक साल से मैं यहाँ देख रहा हूँ कि डिग्री कॉलेज जो द्रास है इस वक्त इसी दौड़ में लगा हुआ है। वो चाहते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो जाए, मालूमात हो जाए उनके लिए कौन कौन सी स्कीमें लगी हुई है, ताकि जिस स्कीम का वो फ़ायदा उठा सके वो अपनी पढ़ाई को आगे ले जा सके। बहुत सारे यहाँ पर दुश्वारियाँ आ रही है कि बच्चे यहाँ पर विंटर में भी जो होता है कुछ मौसमी हालात से भी इनको दुश्वारियाँ आ रही है फाइनेंशियल के लिए। लेकिन इस वक्त उनके लिए, उन बच्चों के लिए भी अलग अलग स्कीमें निकाली गई है। तो कैरियर काउंसलिंग इनके लिए ज़रूरी है। जैसा कि आज के दौर में मैंने अभी पहले ही जिक्र किया कि गोल होना चाहिए, हर एक बच्चे को गोल होना चाहिए। लेकिन उस गोल के लिए वालिदैन का भी होना ज़रूरी है। बाप जो घर वाले होती है, रहबरी पहले बच्चे की तरबियत घर से की जाती है, ताकि अपने बच्चों को वो ये कहे कि आप जाइए। उनको जाने के लिए इस वक्त जो फील्ड दिया गया है आपके इस एरिया में, द्रास में डिग्री कॉलेज द्रास है, हायर सेकेंडरी द्रास जो है, वहाँ पर अगर वो जाए उनको इन मालूमात, इन स्कीमों के बारे में मालूमात हो जाएगी जो इस वक्त द्रास में चल रहे हैं। डिग्री कॉलेज के अलावा वो चाहते हैं यहाँ पर, और पिछले एक साल से वो इस कश्मकश में लगे हुए कि यहाँ पर रीजनल सेंटर इग्नो का भी होना चाहिए और साथ ही साथ मानो का भी, कि ताकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अपनी पढ़ाई को रेगुलर मोड पे ना करे हासिल, लेकिन उनके लिए प्राइवेट मोड यहाँ पर वो चाहते हैं कि इनके लिए होना चाहिए, वो इस्टेब्लिश होना चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से डॉक्टर अमजद अली अब्बासी साहब, जो उसकी पूरी टीम है, स्टाफ जो है यहाँ के, वो इस कश्मकश में लगे हुए हैं कि ताकि यहाँ पे एक चराग रोशन हो जाए, तो इन बच्चों को फ़ायदा उससे मिले। अब रही बात जो वालिदैन जो होते हैं, उनको चाहिए कि अपने बच्चों को वो भेजे कॉलेज या हायर सेकेंडरी भेजे, जहाँ से उनको इन स्कीमों के बारे में पता चले। इग्नो का है, मानो का है। मानो में इस वक्त सर हम जब देखते हैं इस वक्त, तो मानो में इस वक्त ऑलमोस्ट बहुत सारे कोर्सेज हो रहे हैं। वो भी जिस मोड में चाहे इंग्लिश मोड में करना चाहिए कोई बच्चा या उर्दू मोड में, ये आज की सहूलियत रखी गई इन बच्चों के लिए। इसके अलावा इग्नो भी संडे उनकी क्लासेस लगती है, मटेरियल भी वहीं से मिल रहा है, फीस भी सबसे कम है। लेकिन अगर इसके अलावा उनको ये ना मिले कि वो संडे भी ना जा सके, तो उनको ऑनलाइन सब मटेरियल फराहम किया जा सके। दूर दराज जो आ रहे हैं, फार फ्लंग एरियाज से बच्चे जो आ रहे हैं, उनके लिए ये दोनों स्कीमें अच्छी रखी गई है। साथ ही साथ जो रेगुलर मोड में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको NSP ने स्कॉलरशिप रखा है, उनको वहीं से वो मिल रहा है। साथ ही साथ अगर देखेंगे उनकी शादी के लिए भी बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं, पढ़ाई के लिए, बिजनेस के लिए, शादी के लिए, ये अवेलेबल है। लेकिन शर्त यह है कि बच्चे आए, इनका फ़ायदा उठाए। ये इनको वहीं पता चलेगा जब वो कॉलेज जाए, किसी इदारे में जाए, जहाँ इनके बारे में उनको मालूमात मिल सकेंगे। बहुत खूब सर, क्योंकि अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट या प्राइवेट ऐसी यूनिवर्सिटियाँ आएंगे तो जो जिन बच्चों ने अपना पढ़ाई कहीं आधा भी छोड़ी, उनके लिए भी एक मौका मिलेगा। बिल्कुल कंप्लीट। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी है जिनका काम होता है कि बस MMM मैं कहूँ सी मनी मोर मशीन। वो चाहते हैं कि हम पैसे ही खरीदें, वो ये नहीं चाहते हैं कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट आए। उनको बस यही होता है कि 3-4 साल बच्चों को रखे, इनसे हम पैसा जमा करें, 4 साल के बाद ये बच्चे डिग्री लेकर जा रहे हैं। इसलिए उन बच्चों को इस वक्त चाहिए कि पहले कैरियर काउंसलिंग के लिए जाए, वो उनको पता चले
हमारे लिए कौन सा फील्ड बेहतर रहेगा जिसमें हमें फ़ायदा हो सके, आने वाले वक्त में हमें अच्छी जॉब, हम अपना रोज़गार खुद कमा सके। ये अब वो ज़माना नहीं रहा कि पहले ज़माने में कि एक बंदा घर का एक फ़र्द कमा रहा था तो 10 बंदे खा रहे थे। आज का दौर है कि 10 बंदे कमाए, 10 के 10 कमाए और 10 के 10 खाए। तभी इसके लिए तो उनको कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए, प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए। वो तभी हो सकेगी उनको जब वो जाए। इसके अलावा रिसेंटली उन्होंने NEP रखा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो सिस्टम आया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये है कि बच्चे को बिल्कुल उन्होंने ये दी है कि आज़ादी दी है जिसमें आपका दिल चाहे। ये नहीं कि पहले आ रहा था कोई बच्चा चाहता था कि मुझे साइंस लेना है लेकिन मेरी फिजिक्स एक सब्जेक्ट मेरी अच्छी नहीं है, मैं चाहता हूं कि मुझे दूसरा सब्जेक्ट मिल जाए। तब तो ये सिस्टम नहीं होता था। लेकिन इस वक्त NEP में ये रखा गया है कि बच्चे को खुद कहा गया जिसमें आप इतनी आज़ादी दी गई है कि बच्चा खुद ही आज ये कर रहा है चूज कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है। कोई बच्चा चाहता है कि केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, उर्दू या दूसरी कोई सब्जेक्ट उसे पसंद हो वो लेना चाहता है, वो ले सकता है आज। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब वो आज आ जाए, इन फायदा उठाए इन चीजों से। NEP का तो इनके लिए बहुत ही अहम रोल रह गया है इन बच्चों के लिए। आज़ादी बच्चे को भी मिल गई है ताकि वो अपनी ख्वाहिश जो होती है, हर बच्चे के अंदर गोल, मैंने पहले कहा था गोल होना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अपने गोल के मंजर आम पे नहीं ला सकते, उनके अंदर एक डर रहता है, अगर मैं ये करूं तो क्या होगा, अगर ये करूं तो क्या होगा। बस ये क्या होगा ये नहीं सोचना चाहिए, पहले कूदना चाहिए इसमें। जब बच्चा इसमें कूद जाए तो वही चीजें है, या तो कामयाबी मिलेगी उसे या तो नाकामी मिलेगी। कामयाबी मिलेगी तो अच्छी बात है, नाकामी हो जाए तो बच्चे को चाहे कि दोबारा वो आ जाए, कामयाबी की सीढ़ी फिर से पकड़े, एक नहीं, दो नहीं, तीसरी बार वो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगा अपने इस मिशन में। इसलिए गोल होना चाहिए। उस गोल तक पहुंचने के लिए उसको अपने उसातिज़ा का भी सहारा लेना चाहिए, अपनी फैमिलीज का भी होना चाहिए, हमसाए यहाँ तक कि जिस सोसाइटी से वो बिलोंग कर रहा है क्या, ताकि उसके असरात होते हैं। जब हम किसी जगह पे, आप भी जाते हो या हम कश्मीर हिंदुस्तान से बाहर जा रहे हैं तो फिर बिल्कुल कह रहे हैं कि कहाँ से आए हैं ये बंदे। वहां पर हम अपने माहौल को बिल्कुल, वो हमें अपने देख रहे हैं हमारे एक्टिविटीज, फिर हमें ये पूछा जा रहा है। सर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने बात की, खासकर सोसाइटी का भी एक रोल रहता है बिल्कुल पर उसकी बिहेवियर को या उसको डेवलप करने का। अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें, जैसे मैगजीन्स होते हैं, पेपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इनका क्या एक रोल रहता है, और उसके साथ ही साथ यही मैं जो कह रहा हूँ कि सोसाइटी का एक बड़ा रोल रहता है। तो ये कितना आप कहते हैं कि जो खासकर हमारे इस इलाके के बच्चे, लद्दाख के बच्चे, द्रास के बच्चों के अंदर, मैं ये कहूँ कर सर कि हर इंसान के अंदर हुनर होता है, हर इंसान के अंदर स्किल होते हैं। जो बच्चे होते हैं अब वो अपने इस हुनर को कैसे आगे लाएंगे। जैसा कि मैं आपको एक मिसाल दे दूं, लास्ट ईयर से, पिछले साल से जब आपने मेहनत की है, आपने यहाँ पे रेडियो द्रास शुरू किया है, लोग आते हैं यहाँ पे अपनी बात रखते हैं ताकि वो अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे होना चाहिए था प्रिंट मीडिया भी, ताकि बच्चों को ये मौका मिले। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ प्रिंट मीडिया भी होना चाहिए था ताकि वो अपने जज्बात, एहसासात, ख्यालात, जैसे कि हम आ जाए, हमने यहाँ पर अपने जज्बात, एहसासात आपके साथ शेयर किए हैं। तो इसी तरह से कुछ बच्चे ऐसे होते जो डर के सहमे होते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसी बातें होती है जो सोसाइटी के लिए भी ज़रूरी होती है, आने वाले वक्त में भी वो ज़रूरी होती है। उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ प्रिंट मीडिया होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ पर प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कायम किया है। कि इंशाल्लाह मेरी ये दरखास्त है आपसे कि प्रिंट मीडिया भी यहाँ पर चालू कीजिएगा, ताकि आने वाले वक्त में अपने बच्चे जो उनके जज्बात, एहसासात, ख्यालात है वो भी यहाँ पर पेश करे, वो भी उनको दूसरों तक पहुँचाए। आज का दौर जो है ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ प्रिंट मीडिया भी ज़रूरी है। हम अपनी बात को पहुँचा सकते हैं दूसरों तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए भी, प्रिंट मीडिया के जरिए सारे भी हम पहुंचा सकते हैं अपनी बात, चाहे हुकूमत तक पहुंचानी हो, लोगों तक पहुंचानी हो, अपने मोहल्ले तक पहुंचानी हो, अपने एरिया तक पहुंचानी हो। अभी हमने बात की कि सोसाइटी का भी रोल अहम रहा है। आज हम देख रहे हैं कि आम फार्म, अगर आप भी यहाँ से निकलेंगे, बहुत सारे ड्रग एडिक्ट चल रहा है, तो उसके लिए हमें तैयार होना है उसको रोकने के लिए।
न कि दूसरा बंदा हमें बाहर से आए वो हमें रोके। सोसाइटी भी उसके लिए जिम्मेदार है। एक ही सोसाइटी जो होती है वो भी बचत बना सकते हैं, माहौल एक एटमॉस्फेयर कायम कर सकते हैं जिससे यहाँ की जो सोसाइटी है उनका आने वाला मुस्तकबिल ठीक रहे। बिल्कुल। यस सर। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप सुन रहे हैं रेडियो द्रास 90.4 आरजे सलीम के साथ, जो जिस तरह हम गेस्ट इंट्रैक्शन की बात करते हैं, तो हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मसरत हमजा लोन, जो यहाँ पे डिग्री कॉलेज द्रास में प्रोफेसर हैं, उर्दू प्रोफेसर। सर, अब हम लैंग्वेज की तरफ जाते हैं। आप माशाल्लाह उर्दू में आप यहाँ पे भी अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को उर्दू का जो खासकर आज देखते हैं उर्दू का बहुत बुलंद मुकाम है, थोड़ा उर्दू का बैकग्राउंड थोड़ा बताइए, और उसके साथ ही साथ क्या इस दौर में क्या उर्दू के क्या खदमात हैं, और आने वाले दौर में किन किन चीज़ों से आज उर्दू लैंग्वेज गुजर रहा है। बिल्कुल सर। जब हम उर्दू की बात जब आ रही है तो सबसे पहले हम इसकी बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं। उर्दू ये भी कहा जा रहा है कि ये मिली जुली जुबान, ये पर्टिकुलर अगर हम देखते तो ये हिंदुस्तान से आई है, लेकिन मिली जुली जुबान जो बाहर के जो मुल्क थे वहाँ से आई है। कुछ कह रहे हैं अरबी के इसमें कुछ शब्द है, कुछ कह रहे हैं कि इसमें हिंदी के शब्द है, अल्फाज यानी शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वही है। कुछ कह रहे हैं कि पंजाब के, कुछ कह रहे हैं डोगरी के, लेकिन फिर जब ये हिंदुस्तान में आई तो ये मिलजुल कर एक ज़बान उभर कर सामने आई है जिसका नाम आज हमें कह रहे हैं कि उर्दू। तो एक कलमकार ने इसकी वजाहत यूँ की है, उन्होंने इसको ये अलिफ रे दाल वा उर्दू जो है उन्होंने इसको दो हिस्सों में तकसीम किया, अलिफ राम और दालवा दो। जब हम देखते हैं तो फिर उसने नीचे से उसको ये किया कि दो दिलों को जोड़ने वाली जुबान। लेकिन बहरहाल इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में फोकस की जा रही है उर्दू की तरफ। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ तो बिल्कुल थोड़ी सी से दूर जा रही है, लेकिन बाहर के जो मुल्क है, पूरी दुनिया में जो बाहर के मुल्क है, वो इस वक्त फोकस कर रहे हैं कि उर्दू जुबान, जो उर्दू जुबान है इस वक्त तकरीबन पूरी दुनिया में बोली जाती है और मीठी भी है। जब भी आप देखिएगा उर्दू के, अगर हम किसी शायर का भी कलाम उठाएंगे तो इंसान को एक सुरूर आ जाता है कि शायर ने, शायर तो उन्होंने छोटा कहा है, लेकिन बात उन्होंने इतनी वजन की होती है कि इंसान दिन भर अगर उस पर गौर करे तब भी वो बात खत्म नहीं होती। बिल्कुल। जैसा कि हमारे एशिया के बहुत बड़े शायर हैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने उर्दू में शायरी की है। लेकिन अगर हम देखेंगे कि उर्दू, अल्लामा इकबाल की बात करें, अल्लामा इकबाल की हालाती ज़िंदगी जब हम देखते हैं तो उसमें बहुत सारी दुश्वारियाँ आई हैं, मुश्किलातें आ रही हैं, गुर्बत की इतनी सतह थी। ये मैं इसलिए यहाँ पर ही बात कर रहा हूँ कि ताकि बच्चे समझे इस बात को। अल्लामा इकबाल जो थे रहमतुल्लाह अलैह, गुर्बत इतनी थी कि उन्हें 3 शादियाँ करनी पड़ी। पहली शादी जो थी वो भी इसी वजह से टूट गई कि आप गरीब हो। दूसरी शादी हुई वो भी इसी बात पे टूट गई कि आप गरीब हो। तीसरी शादी जो हुई तो वो फिर कायम रह गई है। लेकिन अल्लामा इकबाल अगर उस तरफ हम देखेंगे, दौलत की वजह से तो उनको छोड़ दिया गया है, लेकिन आज अल्लामा इकबाल को 21 और 19 का जो एक सदी में एक शायर उठता है, तो लेकिन कंजिक्यूटिव अल्लामा इकबाल ये है कि जिनको आज मुफक्किर शायर माना जाता है, जो बराबर उस ओहदे पर कायम रहे, वो बस इसी वजह से कि उन्होंने उर्दू में ये की थी, अपनी बात लोगों तक पहुंचाई। अल्लामा इकबाल तो चले गए इस दुनिया से, लेकिन अल्लामा इकबाल का कलाम लोगों के दिलों तक पहुंचता है, लोग आज भी पढ़ते हैं। उर्दू की वजह से अल्लामा इकबाल आज भी जिंदा है हमारे दिलों के पास। तो जो आज की हालात है, हम दूर भाग रहे हैं इस चीज़ से, लेकिन आने वाले वक्त में इंशाल्लाह रहमान, रिसेंटली मैं देख रहा कि अगर आप देखेंगे आपकी यूटी जब से बन गई है, यूटी लद्दाख जब से बन गई है, तो उर्दू की इतने पोस्ट अवेलेबल रखी गई है कि शायद ही मुझे लग रहा है कि 10 साल तक वो पूरे हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए बच्चों को अवेयरनेस, जो आपने पहले कहा था, काउंसलिंग की ज़रूरत है। बच्चे आए, बच्चों को तभी पता चले। और आज के दौर में उर्दू में चाहे कुरान शरीफ हम देखिए उसमें भी लिखा जा रहा है, शायरी देखिए उर्दू में पीजी भी की जाती है, एमएससी फिजिक्स भी आज उर्दू में किया जा रहा है। एमएससी उर्दू, एमएससी मैथ, बीएड पूरा जो है, एमएड जो है उर्दू में ही किया जा रहा है। आजकल हुकूमत भी ऐसी, गवर्नमेंट ने ऐसी ये डिग्रीज रखी है, जो बच्चे उर्दू में ये रखते हैं, महारत रखते हैं, वो अपने पीजी, बीएड, एमए, एमएससी, एमफिल जो भी है, यहाँ तक पीएचडी उर्दू में ही कर सकते हैं।
اب لوگوں کو چاہیے اپنی زبان جو ہے ان کی چاہے شینا ہے بلتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کو بھی محبت کرنی چاہیے اردو کے ساتھ بھی، تاکہ جب ہم اس اپنے خطے سے باہر جا رہے ہیں تو ہم اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اردو تو لگ بھگ ہندی اور اردو ایک ہی ہے، بولنے میں تو ایک ہی ہے، لیکن اس کے لکھنے کے اکثر تھوڑے سے مختلف ہے۔ اردو بالکل کامن ہے، بالکل بولنے میں تو ایک ہی ہے۔ تو جیسے کہ ہم ہندی میں بھی بہت سارے ایسے ہیں کہ وہ ہندی جو تعلق رکھتے ہیں ہندی لینگویج سے، وہ بندے جب ہمارے سے بات کرتے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ بات جب اپنی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہندی بالکل ہندی اور اردو ملی جلی زبان۔ میں نے جو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ مل جلی زبان ہے، دو دلوں کو جوڑنے والی زبان بھی ہے۔ سر اس میں یہی میں اور ایک بات جوڑوں، خاص کر ہم اردو لینگویج کی بات کریں تو آج لوگ جو ہے اردو لینگویج کو تھوڑا لوگوں نے آج جو ویسٹرن کلچر یا دوسرے کلچر کی وجہ سے ہم اپنا اردو لینگویج ہم کھو چکے ہیں، یا ہمیں وہ جیسا آپ نے پہلے کہا علامہ اقبال صاحب یا بہت سارے مفکرین گزرے ہیں، ہم ان کی بایوگرافی نہیں پڑھتے ہیں یا ہم ان کے جو خدمات جو ہے وہ نہیں دیکھتے ہیں۔ تو ہم کس طرح اردو سے جڑنے کی کوشش کریں، اگر جو چاہتے ہیں کہ اردو سے جڑیں، ہم اردو لینگویج سے جڑیں؟ بالکل سر، جیسے کہ سر یہاں پر آپ کے جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے پرائمری سکول ہے، مڈل سکول ہے، وہاں سے تو بالکل اردو ہے، وہاں پر اس وقت بھی پڑھائی جا رہی ہے۔ پھر بچے جب ہائر سیکنڈری آتی ہے وہاں پر بھی اردو ہے، کالج میں بھی اردو ہے، لیکن بچوں کو میں نے پہلے کہا کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے۔ زبان آج تو ایک ہی زبان نہیں چلتی ہے، ہماری کام ایک ہی زبان سے نہیں چلتی ہے، اس کے ساتھ ہمیں انگلش بھی سیکھنی ہے، اردو بھی سیکھنی ہے، اور بھی جو آپ کی جیسے کہ یہاں پر آپ کی شینا اور بلتی آلتی ہے، اردو اور انگلش آپ کو ضروری سیکھنی ہے، تاکہ ہم اپنے آنے والی کل جو بھی ہم دیکھتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ جب ہم دوسری جگہ ملتے خطے میں، وہاں تو ہر کوئی شینا نہیں جانتا ہے، بلتی نہیں جانتا ہے، لیکن اردو اور انگلش یہ دونوں ایسی زبانیں ہیں جو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کو ہر جگہ پہ کام آئے گی۔ اب لوگ اس سے تھوڑے سے دور چلے گئے، جو یہاں پر کیریئر کاؤنسلنگ کیمپ لگتے ہیں وہ لگنے بھی چاہیے، اور آپ کی مادھیم سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جو یہ وسادت آپ نے یہ چینل جو یہاں پہ قائم کیا ہے، ریڈیو دراز جو آپ نے چالو کیا ہے، کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ایسے پروگرام رکھیے گا جو زبان پہ بات کرے، لینگویج پہ بات کرے، بچوں کو یہ اویئر کرے کہ یہ کتنی ضروری ہے، اس سے ہمیں کون سے فائدے مل رہے ہیں، یہ ہمیں کہاں پہ کام آ رہی ہے۔ اس کے لیے جو گھر میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو ہمیں آج سے ہی اس کی طرف مائل کرنا چاہیے کہ بیٹا یہ پڑھ لینی چاہیے، تاکہ آنے والی کل کو ان کو کوئی دشواری نہ آئے۔ بدقسمتی سے یہ ہوا ہے کہ ہم بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مشکل ہے، لیکن جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب سے آسان پہلے سیکھنا ہے۔ اردو کے جب ہم دیکھتے ہیں حروفی تہجی، جیسا کہ انگلش میں الفابیٹ ہے، اردو کی جب ہم بات کرتے ہیں اردو اس کی حروفی تہجی جو ہے 36 ہے، وہ سیکھنے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو ملانا ہے۔ پھر جب ہم بات تو آپ ویسے بھی کر رہے ہیں، آپ جہاں بھی جائے گا آپ بات کرتے ہیں، چاہے ہندی میں یا اردو میں، لیکن ایک ہی ہے، بس لکھنے کے لیے بچوں کو مائل کرنا ہے ہمیں، اور ہمیں ان کو بتانا چاہیے کہ یہ ہمارے آنے والی کل کے لیے بھی ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ سر۔ مسرت صاحب، آخری کیا میسیج رہے گا ریڈیو دراز 90.4 جو سن رہے ہیں آپ لوگوں کو، جو ان لوگوں کے لیے کیا میسیج رہے گا، خاص کر ایجوکیشن کے بارے میں یا اس لینگویج کے بارے میں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی ریڈیو دراز کی وسادت سے، جو ہماری اس وقت بات سن رہے ہیں یا آنے والے کل میں بھی سن سکتے ہیں، کیونکہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ضرور کوئی نہ ہمیں یہ سن پائیں گے۔ ہم ان تک بس یہی بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ آنے والا وقت کا کسی کو کچھ نہیں پتا ہے، جو کل ہے وہ کسی کو نہیں پتا، لیکن دنیا میں آج اگر ہمیں زندگی اپنی جینی ہے تو ایجوکیشن سب سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے۔ ایجوکیشن ماڈیفیکیشن آف بیہیویئر بھی ہے، ہمیں سکھاتا بھی ہے، جہاں بھی ہم جائیں ایجوکیشن کے بغیر ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ 99% ایسے لوگ ہیں جن کو اپنا گول آج ہی بنانا چاہیے۔ ایجوکیشن جو پڑھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے خاص کر، جو ان کو گول آج ہی بنانا چاہیے، مجھے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، لیکن اس لکشے تک پہنچنے کے لیے جو سیڑھی ہے، جو کوئی چاہتا کہ میں بڑا آفیسر بنوں، IAS بنوں، KS بنوں، میں ڈائریکٹر بنوں یا پروسیکیوٹر بنوں، جج بنوں، جو بھی، ڈاکٹر بنوں، انجینئر بنوں، لیکن اس کے لیے جو سیڑھی ہے وہ ایجوکیشن ہے، جو ایجوکیشن ہے۔ لیکن یہ ایجوکیشن کی سیڑھی کی پہلی جو سٹیپ ہے، یہ ہمارے گھر سے، والدین سے شروع ہوتی ہے، ماں باپ جو ہے وہیں سے شروع ہوتی ہے۔
अगर हम अपने बच्चों को पहले से वहाँ से पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, उनको आने वाले हमारे आज के दौर में यही हुआ, मैक्सिमम आप देखते रहते होंगे हमसे ज़्यादा ही, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज़्यादा वाबस्ते हैं। जो आजकल के छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी जो बचपना जिनका है 2-2.5 साल के है, वो आज खाना नहीं खा रहे हैं बगैर के मोबाइल के, बगैर के टीवी के। जब तक न उन्हें माँ कोई गाना या कोई गेम आप देख रहे हैं, तो ये एक रिसर्च आप देखिएगा, वो भी एक ड्रग एडिक्ट है। हमने यहाँ पर समझाया कि ड्रग एडिक्ट क्या है, कि सिर्फ नशा है, सिगरेट है, ये है, लेकिन इस वक्त जिसमें हम 99% दबे हुए हैं वो ये है कि मोबाइल एडिक्ट। अगर हम उन बच्चों को आज से ही एजुकेशन की तरफ माइल करेंगे, उन बच्चों को पहले से कहेंगे आपका मुस्तकबिल जो है वो यहीं से शुरू हो रहा है बेटा, यहीं से आपको शुरू करना है अपना मंजिल भी मकसद भी, तो आने वाला कल उनके लिए आसान हो जाएगा। एजुकेशन ज़रूरी है, साथ ही साथ उन बच्चों को चाहिए कि जिस कम्युनिटी से वो ताल्लुक़ रखे, अपने जो भी मज़हब है जिससे वो ताल्लुक़ रखते हैं उसका मुताला करे, ताकि उनको अपना खुदा भी समझ आए, अपना मुस्तकबिल भी समझ आए, अपना आखिरत भी वो समझ सके, संवार सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सामीन रेडियो द्रास सुनने वाले नाज़रीन को एक बार फिर बताएं, आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद थे डॉक्टर मसरत हमजा लोन, जो उर्दू के प्रोफेसर हैं डिग्री कॉलेज द्रास में। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना टाइम निकालने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे डॉक्टर मसरत जो आपको कह रहे थे कि किस तरह एक इम्पॉर्टेंट है, एक उर्दू की बात करें या लैंग्वेज की बात करें, उसके साथ ही साथ एजुकेशन की बात करें। और रिसेंटली डॉक्टर ने ये भी कहा कि मोबाइल एडिक्शन ये भी एक बहुत बड़ा आने वाले टाइम में, या अभी जो मोबाइल एडिक्शन हो रहा है उससे भी खासकर पेरेंट्स को सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखने की ज़रूरत है। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर सर आपने। मैं इसके साथ और एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि इस वक्त यूनियन टेरिटरी में जो भी हुकूमत है वो इन बच्चों के लिए बहुत सारे ऐसे स्कीम्स लाई है, वो भी चाहते हैं कि यहाँ एकदम ये उभर कर आए सामने, जो ये खता हमारा है यहाँ के लोगों। और मैं आपको चाहता हूँ कि हुकूमत ने अपना काम किया है या कर रही है, तो लेकिन यहाँ की जो सोसाइटी है उनको भी चाहिए उभर कर सामने आ जाए, ताकि आने वाली कल दुनिया में द्रास का नाम, पूरे लद्दाख खत्ते का नाम लिया जाए। जैसे कि आपके यहाँ पर आप लोगों को, मैंने अभी इकबाल साहब की बात कही थी, आपको अगर देखना ही है अब्दुल गनी शेख साहब आप देखिएगा, और रिसेंटली अनवर साहब जो है IPS KS उन्होंने किया है क्वालिफाई, दूसरा भी सर है शाहनवाज सर, वो इसी खत्ते से होते हैं, इसी गुर्बत की सतह से। गुर्बत है यहाँ पर, मुश्किलात है, 2-4 है यहाँ पर, लेकिन अफलास गरीबी ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी, लेकिन एजुकेशन की तरफ आएगा, अपना मुस्तकबिल संवारेगा। हुकूमत भी चाहती है आप जाइएगा उनके मिल बांट के उनके साथ बैठिए, आप जो आपकी मुश्किलात है, जो ज़रूरियात है, आप अपनी बात उन तक पहुँचाएगा, जो उन्होंने आपके लिए वसाइल रखे उसका फ़ायदा उठाएगा। शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर एक बार फिर। लास्ट में रेडियो द्रास सुनने वालों को एक अपना एक किसी चीज़ का एक उर्दू का कलाम बोल के हम इस प्रोग्राम को इधर एंड करते हैं सर। तो नाजरीन, ये थे डॉक्टर मसरत, और चलते चलते हम डॉक्टर साहब से एक प्रोग्राम सुन के जाएंगे। तब तक आप बने रहिए, रेडियो द्रास 90.4 को ट्यून करने ना भूलिए। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते में और हर रोज़ की तरह कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। आप रेडियो द्रास सुनते रहिए और दूसरों तक भी बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। न खौफ न मंजिल की फिक्र, अपने ही धुन में चला चल हम सफर। कभी द्रास से श्रीनगर या हो लद्दाख का सफर, हर दम रहे आपके साथ आपका अपना रेडियो द्रास 90.4।